السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں وزیر اعلیٰ سندھ کی محفوظ خوراک کی فراہمی کے لیے ترجیحات ہو، یا گورنر سندھ کا مفت AI سمر کیمپ کا اعلان ہو، چین سے پاک بحریہ کی پہلی ہینگ اور آبدوز کی کراچی آمد ہو، یا پیپلز پارٹی سیمینار میں 18ویں ترمیم رول بیک نہ کرنے پر اظہار ہو، کراچی سبزی منڈی میں 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک کا قیام ہو، یا صوبائی وزیر ثقافت سندھ کا موہنجو دڑو کے لیے رد عمل کا اظہار ہو، چیئرپرسن قائمہ کمیٹی کا منشیات کی لعنت کے خلاف اظہار ہو، یا نئے ایشین گیمز میں پاکستانی پلیئرز کی فتح یابی ہو، کراچی خالق دینا ہال میں شعر و سخن کی محفل کا انعقاد ہو، یا کراچی پریس کلب میں ادبی فلم ویلیکور کے ٹریلر کا اجرا ہو، یا ہو سندھ حکومت کا تھر پار کر متاثرہ اونٹنی کے لیے بہترین طبی امداد کا حکم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے اور ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے ہنا ظفر کی جانب۔ جی ہنا، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ ہینا ظفر۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ اہل پنجاب کی موجیں ختم، حکومت نے بڑی سہولت واپس لے لی۔ گرو ارجن کا شہیدی دن منانے کے لیے 700 کے قریب سکھ یاتری انڈیا سے پاکستان پہنچ گئے۔ لاہور کا قدیمی بازار اچھرا کی جدید و طرز کی تزئین و آرائش توجہ کا مرکز۔ ڈیجیٹل دور کی تیز رفتار تبدیلیوں سے مال روڈ اور انارکلی کے قریب ہر اتوار کو سجنے والے پرانی کتابوں کے بازار کی رونقیں متاثر۔ شہری کے نام پر 421 گاڑیاں، لاکھوں کے چالان دیکھ کر پولیس حیران۔ لاہور میں تیزاب گردی کا واقعہ، ملزم نے متاثرین پر زمزم پلانے کے نام پر تیزاب پھینک دیا۔ لاہور میں 3 روزہ منی فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلوں کا انعقاد۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ میں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی رواں ہفتے اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس، وزیر خزانہ نے مالی سال 2026-27 کے لیے 18,000 ارب روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا۔ پاکستان میں گدھوں اور خچروں کی تعداد میں اضافہ، ایک سال کے دوران ملک میں گدھوں کی مجموعی تعداد 60 لاکھ سے بڑھ کر 61 لاکھ ہو گئی۔ پاکستان میں خواتین کے کھیلوں کے لیے تاریخی پیش رفت، پاکستان ہاکی فیڈریشن نے قومی ویمنز ہاکی چیمپئن شپ کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری، ITP نے 1,60,000 سے زائد شہریوں کے ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق امور نمٹا دیے۔ خاتون افسر کائنات اظہر خان کو چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد تعینات کر دیا گیا۔ مری میں سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ، 10 افراد جاں بحق، 13 شدید زخمی۔ ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر جنرل متین کی فیلڈ مارشل سے ملاقات، علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ ملک بھر میں بارشوں کا الرٹ جاری، شمالی علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ محفوظ خوراک کی فراہمی حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے، وزیر اعلیٰ سندھ۔ گورنر سندھ کا طلباء اور طالبات کے لیے مفت AI سمر کیمپ کا اعلان۔ چین میں تیار ہونے والی پاک بحریہ کی پہلی ہینگ اور کلاس آبدوز کراچی پہنچ گئی۔ لیاری میں فیفا 2026 ورلڈ کپ کا میلہ سج گیا۔ سندھ 18ویں ترمیم رول بیک نہیں ہونے دیں گے، پیپلز پارٹی سندھ کا سیمینار۔ کراچی سبزی منڈی میں 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم ہوگا، سینئر صوبائی وزیر سندھ۔ موہنجو دڑو عظیم تہذیب کی علامت ہے، صوبائی وزیر ثقافت سندھ۔ والدین، اساتذہ اور اداروں کو منشیات کی لعنت کے خلاف متحد ہونا چاہیے، چیئرپرسن قائمہ کمیٹی۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आलमी यौम ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि बच्चों, ख़वातीन और कमज़ोर तबक़ात को महफूज खुराक की फ़राहमी हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि महफूज ग़ज़ा ही सेहतमंद कौम और मजबूत मईशत की बुनियाद है। महफूज ग़ज़ा हर इंसान का बुनियादी हक़ और सेहतमंद समाज की ज़मानत है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ इंसानी सेहत, मजबूत मईशत और पायदार तरक्की के लिए निहायत अहमियत रखता है, जबकि गैर मयारी और आलूदा खुराक कई ख़तरनाक बीमारियों का सबब बनती है। हुकूमत सिंध आवाम को महफूज, मयारी और सेहत बख्श खुराक की फराहमी के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गर्मियों की तातीलात के दौरान तलबा के लिए मुफ्त AI समर कैंप के इनेकाद का ऐलान किया है। गवर्नर सिंध का कहना था कि समर कैंप के ज़रिए तलबा को जदीद मसनूई ज़हानत की मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी, ताकि उन्हें मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक महारतों से आरास्ता किया जा सके। बच्चों को कम उम्री से जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दानियाल नागोरी ने बताया कि AI समर कैंप में शिरकत के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात गवर्नर सिंध की वेबसाइट के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर सकते हैं। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फ़हद हारून और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। पाक बहरिया की चीन में तैयार होने वाली पहली हैंगौर क्लास आबदोज़ PNSM हैंगौर कराची पहुंच गई। जदीद आबदोज़ जदीद तरीन कॉम्बैट सिस्टम्स, सेंसर्स, सोनार, रेडार और हथियारों से लेस है। इसमें जदीद स्टील्थ टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो इसे दुश्मन की नज़रों से ओझल रहते हुए मौसर कार्रवाई की सलाहियत फराहम करती है। ये आबदोज़ तवील फासले तक मार करने वाले टारपेडोज़ और क्रूज़ मिज़ाइल ले जाने की सलाहियत रखती है। PNSM हैंगौर की एक नुमाया खसूसियत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन निज़ाम है, जिसकी बदौलत ये तवील अरसे तक ज़ेर आब रहकर ऑपरेशन सर अंजाम दे सकती है। जदीद आबदोज़ पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत, दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। ये आबदोज़ पाक बहरिया की फ्लीट में शामिल होकर न सिर्फ मुल्की बहरी दिफा को मजबूत बनाएगी, बल्कि ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन और समंदरी सलामती के हवाले से भी अहम किरदार अदा करेगी। हैंगौर नाम पाकिस्तान की बहरी तारीख़ में जुर्रत, महारत और पेशा वराना बरतरी की अलामत है। बहरिया की आबदोज़ हैंगौर ने 1971 की पाक भारत जंग में भारतीय बहरिया के जंगी जहाज़ खकरी को गर्क आब करके तारीख़ रकम की थी। इसी काबिल फ़ख्र तारीख़ी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए नई हैंगौर क्लास आबदोज़ों को ये नाम दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की धूम आलमी सतह पर तो है ही, लेकिन कराची के मारूफ इलाके लियारी टाउन में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप का जोश व खरोश अपने उरूज पर है। ऐसा लगता है कि फ़ुटबॉल खेल लियारी की मट्टी में शामिल है और यहाँ के बच्चों को फ़ुटबॉल खेल की मोहब्बत विरासत में मिली है। फ़ुटबॉल चैम्पियंस के नामों और तस्वीरों की टी-शर्ट्स पहने बच्चे और जवान फ़ुटबॉल के जुनून को अपने अंदर बसाए हुए हैं। और ऐसा क्यों ना हो, लियारी के बड़ों ने फुटबॉल चैंपियन मैराडोना का जादू देखा और नई नस्ल मेसी और रोनाल्डो के सहर में मुब्तला है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में शामिल टीमों के कौमी झंडे लियारी के फुटबॉल ग्राउंड्स और घरों में लहरा रहे हैं। गोया वर्ल्ड कप 2026 लियारी में ही होने जा रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप को बतौर त्यौहार और मेला एंजॉय करना लियारी की सकाफत बन चुका है। कमाल ये है कि उसे बतौर जश्न मनाना लियारी के बेशतर रिहायशी अपनी मदद आपके तहत करते हैं। यहाँ मुख्तलिफ खिलाड़ियों और टीमों के चाहने वाले अपने पसंद के मुताबिक उन्हें सपोर्ट करते हुए लियारी की गलियों में रैलियां निकालते नजर आ रहे हैं। गुजरते वक्त के साथ खिलाड़ी बदलते जा रहे हैं और फातेह टीमों में भी बदलाव आ जाता है, लेकिन लियारी के फुटबॉल जुनून में हर आने वाले वक्त में मजीद इजाफा होता नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी सिंध के ज़ेर एहतमाम सेमिनार बाउनवान कराची को वफाक के मातहत चलाने, NFC अवार्ड में कटौती, 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ बातें, सिंध को 1 यूनिट की तरफ धकेलने की साजिश तो नहीं, मुनक्किद हुआ।
सेमिनार से सदारती खिताब करते हुए सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो ने कहा कि वफाकी हुकूमत आइन के तहत सूबे को सिर्फ सूबे के मफाद में वफाकी कवानीन पर अमल दरामद के लिए हिदायत दे सकती है। वफाकी हुकूमत किसी शहर का इंतजामी कंट्रोल नहीं ले सकती। 18वीं तरमीम तमाम सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से पार्लियामेंट से मंजूर होकर आइन का हिस्सा बन चुकी है। साबिक चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान मियां रज़ा रब्बानी ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि कराची सिंध का दारुल हुकूमत था और अब भी है, लिहाजा कराची सिंध से ना अलग है ना ही कभी अलग होगा और कराची और गवादर को वफाक के मातहत चलाने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से तरमीम की ज़रूरत होगी और जो लोग कराची को सिंध से अलग करने की बात करते हैं वो पहले वफाक और सूबे में 2/3 अक्सरियत ले आएँ। पीपल्स पार्टी के सेमिनार में कहा गया है कि सिंध 18वीं तरमीम को रूल बैक नहीं होने देगा। कौमी मालियाती कमीशन का फौरी इजलास तलब करके नई मालियाती अवार्ड का इजरा किया जाए। हुकूमत सिंध ने नई सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए खुसूसी वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला कर लिया, जिसके लिए महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट की जानिब से मुताल्लिका इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी गई हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इजलास सीनियर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की सदारत में हुआ, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स को एक ही मकाम पर तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम करने के लिए फैसिलिटेशन डेस्क के क़याम की मंजूरी दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर का कहना था कि इस डेस्क का मकसद कराची आने वाली माल बरदार और कमर्शियल गाड़ियों को रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात के इजरा और तजदीद की सहूलत एक ही जगह फराहम करना है। इस इक़दाम के ज़रिए 30 जून 2026 तक ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल और माल बरदार गाड़ियों को हुकूमत सिंध के डिजिटल और ऑटोमेशन निज़ाम में शामिल करना है, ताकि कानूनी तकाज़ों की तकमील, ट्रांसपोर्टर्स को बरवक्त सहूलतों की फराहमी और माली साल 2025 ta 2026 के मुकर्रर अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाया जा सके। भारतीय वजारत सकाफ़त की जानिब से मोहनजोदड़ो के हवाले से दावे पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर सकाफ़त और सियाहत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा है कि मोहनजोदड़ो की तारीख़ को मस्ख़ करने की हर भारतीय कोशिश को मुस्तरद करते हैं। मोहनजोदड़ो अजीम तहज़ीब की अलामत है। तारीख़ी हक़ाइक़ को मस्ख़ करना आलमी और सकाफ़ती दियानत के ख़िलाफ़ है। मोहनजोदड़ो सिंध और पाकिस्तान के सकाफ़ती विरसे का लाजमी हिस्सा है। वादी सिंध की तहज़ीब पर किसी एक मुल्क की इजारादारी का दावा तारीखी हक़ाइक़ के मुनाफी है। मोहनजोदड़ो यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल एक अजीम तारीख़ी मुकाम है। डाइसिंग ग्रिल समेत मोहनजोदड़ो से दरियाफ्त शुदा नवादरात सिंध के सकाफ़ती विरसे का हिस्सा हैं। वादी सिंध तहज़ीब जदीद रियासतों के क़याम से हज़ारों साल कबल मौजूद थी। वाज़ेह है कि वज़ारत सकाफ़त हिंदुस्तान ने समाजी वेबसाइट की एक पोस्ट में मोहनजोदड़ो से दरियाफ्त होने वाली एक मोहर द पाशुपति सील की तस्वीर पर कैप्शन लिखा कि भारत की कदीम और मुसलसल चलने वाली तहज़ीब की एक अहम निशानी, जिसका वज़ीर सकाफ़त सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने भरपूर रद्द अमल ज़ाहिर किया। कायमा कमेटी बराए दाखिला सिंध असम्बली के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इजलास में चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए दाखिला सिंध असम्बली फरियाल तालपुर ने इस बात पर जोर दिया कि मंशियात के ख़ात्मे के लिए तमाम मुताल्लिका इदारे, मुंतखब नुमाइंदे, वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे के अफराद को मुत्तहिद होकर अपना अपना किरदार अदा करना होगा। उनका कहना था कि अगरचे एक इनफरादी मंशियात फ़रोश की गिरफ्तारी एक अहम कामयाबी है, लेकिन असल मकसद मंशियात के पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन को ख़त्म करना है। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने मंशियात के मुबैयन स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी के केस में तफसीली ब्रीफिंग दी। कायमा कमेटी ने सिंध बलूचिस्तान सरहद पर रास्तों की निगरानी और स्मगलिंग और बैनुल सूबाई मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात का भी जायज़ा लिया। इजलास में वज़ीर दाखिला और कानून सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, वज़ीर एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल मुकेश कुमार चावला, वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध जावेद आलम मोडल समेत दीगर हुक्काम ने भी शिरकत की। जी तो नाज़रीन, ये थी इस हफ्ते की कराची की खास खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से हिना आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में रहने वालों की मौजें अब ख़त्म हो गईं क्योंकि सूबाई हुकूमत ने एक बड़ी सहूलत ख़त्म कर दी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफ़र की सहूलत ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है, जिसके तहत 13 जून से मुसाफिरों को सफ़र के लिए बाकायदा टिकट ख़रीदना होगा। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी PMA के हुकाम के मुताबिक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस और अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली दीगर तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर मुफ्त सफ़र की सहूलत को 13 जून से ख़त्म कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि मुफ्त सफ़र की ये सहूलत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई थी। ताहम अब इस सहूलत को वापस लेने का फैसला किया गया है। PMA हुकाम के मुताबिक 13 जून के बाद ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस समेत तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को मुकर्रर किराया अदा करके टिकट खरीदना होगा और तमाम मुसाफिर मामूल के किरायों के मुताबिक सफ़र करेंगे। नाज़रीन, सिख मजहब के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए 600 से ज़ायद भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान पहुँच गए। वाघा बॉर्डर पर सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और मुतलका इदारों की जानिब से यात्रियों के इस्तकबाल और सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। वाघा बॉर्डर पर लंगर, तिबी अमदार, इमिग्रेशन, रहनुमाई और सिक्योरिटी के जामिया इंतजाम फराहम किए गए ताकि यात्रियों को हर मुमकिन सहूलत मैसर आ सके। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ मजहबी हमानगी, बैनुल मज़ाहब एहतराम और अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिख कम्युनिटी का दूसरा नहीं बल्कि पहला घर है और दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों को अपने मुक़द्दस मुकामात पर मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पुरअमन, महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान दी ये धरती अमन दी ते मुहब्बत दी धरती है। पाकिस्तान दी धरती हमेशा प्यार दी गल करदी है। पाकिस्तान की धरती हमेशा जोड़न की गल करती है। भारतीय सिख यात्री अपने 10 रोज़ा क़याम के दौरान गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब, गुरुद्वारा पंजा साहब, गुरुद्वारा दरबार साहब, करतारपुर समेत दीगर मुकद्दस मुकामात की यात्रा करेंगे, जबकि गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिन की मरकजी तकरीब 16 जून को गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में मुनक़द होगी। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर के तारीखी बाजार अब सिर्फ खरीदारी के मराकज़ नहीं बल्कि जदीद खूबसूरती, सकाफत और शहरी सहूलियात की नई मिसाल बनते जा रहे हैं, जिसमें तारीखी इचरा बाजार सबसे नुमाया है। लाहौर का ये कदीमी बाजार इचरा जदीद तर्ज की तज़ीन और आराइश के बाद एक नए अंदाज में सामने आया है। तफसीला मोहम्मद इलियास की इस रिपोर्ट में। लाहौर के कदीमी और मरूफ तजारती मराकज़ में शुमार होने वाला इचरा बाजार जदीद तर्ज की तज़ीन और आराइश के बाद एक नए अंदाज में सामने आया है। बाजार में सड़कों, फुटपाथों और अतराफ के माहौल को बेहतर बनाया गया है, जिससे न सिर्फ खूबसूरती में इजाफा हुआ बल्कि खरीदारों और ताजरों के लिए सहूलत भी बेहतर हुई है। पंजाब हुकूमत का कहना है सूबे के मुख्तलिफ शहरों में शहरी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सड़कों, बाजारों, पार्कों और अवामी मकामात की बेहतरी पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस सिलसिला में इचरा बाजार की तज़ीन और आराइश का मंसूबा मुकम्मल किया गया, जिसके बाद ये इलाका पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और पुरकशिश दिखाई दे रहा है। ताहम बाज़ शहरियों ने इस बात पर जोर दिया कि तज़ीन और आराइश के साथ साथ सफाई, ट्रैफिक, नज़्म-ओ-ज़ब्त और तजावुज़ात के खात्मे को भी मुस्तकिल बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। पहले जब आते थे यहाँ पे रेडी और जुहूम बहुत ज्यादा होता था कि गुजरना मुश्किल हो जाता। बाजार तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाते हैं, ऐसे जैसे यूरोप बन गया। अब तो बहुत प्यारा बन गया, हम शुक्रगुजार है मरियम नवाज के लिए। शॉप्स काफी अच्छी हो गई हैं और जो वो सड़कें खराब हुई हुई थी बहुत ज्यादा, वो काफी बेहतर हो गई हैं और गंद वगैरह तो काफी साफ सफाई काफी अच्छी हो गई है। लाहौर की तरीही शनाख्त समझे जाने वाले इचरा बाजार की नई सूरत शहरी तरक्की और खूबसूरती के मंसूबों की एक नुमाया मिसाल बन गई। नाज़रीन, लाहौर माल रोड और अनारकली के करीब हर इतवार को सजने वाला पुरानी किताबों का बाजार सिर्फ खरीदो फरोख्त की जगह नहीं, लाहौर की इल्मी और सकाफती तारीख का एक जिंदा बाब है। डिजिटल दौर की तेज रफ्तार तब्दीलियों ने इस बाजार की रौनकों को भी मुतासिर किया है।
موبائل فون، ٹیبلیٹ اور انٹرنیٹ نے جہاں علم تک رسائی کو آسان بنایا ہے، وہیں کتابوں سے جڑی کئی روایات خاموشی سے ماند پڑتی جا رہی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں عاصم محمود اس رپورٹ میں۔ کبھی لاہور کی گلیوں اور محلوں میں چھوٹی لائبریریاں علم بانٹتی تھی، آج ان کی جگہ موبائل اور لیپ ٹاپ کی سکرینوں نے لے لی ہے۔ لاہور کے مال روڈ اور انارکلی کے قریب فٹ پاتھ پر سجنے والے کتابوں کے اتوار بازار میں بھی ماضی جیسی رونق دکھائی نہیں دیتی۔ فٹ پاتھوں پر کتابوں کی خوشبو مدم پڑ رہی ہے۔ انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز نے معلومات تک رسائی آسان بنائی، لیکن روایتی کتابوں کی فروخت کو بھی متاثر کیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ یا ختم تو ہو ہی رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک سرٹن کمیونٹی ہے جو پڑھنا چاہتی ہے، اور ٹیکنالوجی اور یہ انٹرنیٹ تو کسی طرح بھی اس کو اوورکم نہیں کر سکتا۔ جس کو شوق ہے اس کو ہے۔ کتابیں جو ہیں مختلف طریقے کی وہ انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں، تو آپ انٹرنیٹ پہ کھول کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا لوگ خریدنے سے جو ہے قاصر رہتے ہیں۔ کافی لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کریں کتابوں کے اوپر۔ کتاب بنیادی طور پہ آپ کو اخلاقیات، آپ کو رہنے کا طریقہ اور معاشرے میں کس طرح سے آپ نے چیزوں کو برتاؤ کیسا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اسی کتاب کے ذریعے ہی بندہ سیکھتا ہے۔ موبائل فون اور ٹیکنالوجی نے معلومات تک رسائی کے راستے بدل دیے، لیکن کتابوں کا یہ اعتبار بازار کتابینی کی ثقافت کو زندہ رکھنے کی ایک خاموش کوشش ہے، جو ڈیجیٹل دور کے تیز بہاؤ کے سامنے آج بھی مزاحمت کر رہی ہے۔ ہر اتوار مال روڈ اور انارکلی کے قریب سجنے والا یہ بازار دراصل کتب بینی کی ثقافت کو زندہ رکھنے کی ایک خاموش کوشش ہے۔ ڈیجیٹل دور کے تیز بہاؤ میں یہ فٹ پاتھ آج بھی اس حقیقت کی یاد دلاتے ہیں کہ اسکرین پر پڑھے جانے والے الفاظ اور ہاتھ میں تھامی ہوئی کتاب کے درمیان ایک ایسا جذباتی اور فکری رشتہ موجود ہے جسے ٹیکنالوجی مکمل طور پر تبدیل نہیں کر سکی۔ ناظرین، لاہور میں شہری کے نام پر 421 گاڑیوں کا انکشاف، جس پر لاکھوں روپے کے چالان دے کر پولیس اہلکار بھی حیران رہ گئے۔ ٹریفک پولیس کے جنرل ہولڈ اپ کے دوران ایک حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے، جس میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں اور گاڑیوں کے رجسٹریشن کے بڑے ریکارڈ بے نقاب ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جنرل ہولڈ اپ کے دوران ایک موٹر سائیکل سوار کو روک کر اس کی ملکیت کی جانچ پڑتال کی گئی تو انکشاف ہوا کہ باز محمد نامی شہری کے نام پر 421 گاڑیاں، رکشے اور موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں۔ اس انکشاف نے موقع پر موجود اہلکاروں کو بھی حیران کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق باز محمد کے نام پر 20,88,800 روپے سے زائد کے ای چالان بھی واجب الادا ہیں۔ کارروائی کے دوران مذکورہ شہری کی موٹر سائیکل کو تھانہ مسلم ٹاؤن میں بند کر دیا گیا۔ سی ٹی او لاہور کے حکم پر ای چالان نادہندگان کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق لاکھوں روپے کے بقایا ای چالان ٹریفک پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئے ہیں، جبکہ لاہور میں جعلی یا مشتبہ رجسٹریشن کی جانچ کا دائرہ بھی وسیع کر دیا گیا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ قانون شکن عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری ہے۔ ای چالان نادہندگان کو اب سخت کارروائی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں تیزاب گردی کا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ملزم نے متاثرین پر زمزم پلانے کے نام پر تیزاب پھینک دیا۔ تیزاب گردی کا واقعہ رنگ محل کے علاقے میں پیش آیا، جہاں دکان پر موجود 6 افراد تیزاب سے جھلس گئے۔ واقعے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، جبکہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم ایک بیگ میں 2 بوتلیں لے کر دکان پر آیا اور وہاں موجود افراد سے کہا کہ تمہیں اب زمزم پلاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے دکان میں بیٹھے افراد پر تیزاب پھینک دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ واقعے میں 6 افراد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایس پی سٹی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی ہدایت پر ملزم کی فوری گرفتاری کے احکامات جاری کیے اور اطلاع ملنے پر ایس ایچ او رنگ محل نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم رشید کو گرفتار کر لیا۔ پولیس تحقیقات کے مطابق ملزم نے 5 روز قبل ہونے والی گالم گلوچ اور بدتمیزی کی رنجش پر یہ اقدام کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ واقعے کی مزید پہلوؤں پر تحقیقات جاری ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں، فیفا ورلڈ کپ کا جنون پاکستان میں بھی عروج پر ہے۔ اس حوالے سے لاہور میں 3 روزہ منی فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے ہوئے، جس میں بچوں کی بڑی تعداد نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ لٹل سٹارز نے میسی اور رونالڈو کو اپنا آئیڈل قرار دیتے ہوئے ورلڈ کپ میں اپنی فیوریٹ ٹیموں کے نام بھی بتائے۔ تفصیلات محمد یوسف انجم سے۔
लाहौरी बच्चे भी वर्ल्ड कप फुटबॉल के जुनून में मुब्तला हो गए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज पर डिफेंस में इंटर अकेडमीज मिनी फुटबॉल वर्ल्ड कप के नाम से इवेंट कराया गया, जिसमें 10, 12, 14 और 16 साल के बच्चों ने अपनी सलाहियतों का खूब मुजाहरा किया। रोनाल्डो, मेसी, नेमार और दीगर स्टार्स फुटबॉलर के दीवाने इन बच्चों के मुताबिक वर्ल्ड कप फुटबॉल मैचेस देखने के साथ अपने फेवरेट खिलाड़ियों की तरह खेलने का अपना ही एक मजा है। अगर इस मैच की आगे की बात करें, आई फील लाइक अगर हम लोग इस टूर्नामेंट को जीत सकते तो बहुत अच्छा होगा, और इवन तो अगर हम लोग सेकंड में आ जाते तो इतने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट इस बार ये हर होता है इस बार। और जो हमारी टीम है वो ब्राज़ील है, और हमारे टोटल 8 गोल हो गए। हम फाइनल में हमारे सामने पोर्तुगल होगी फाइनल्स में, और हमारे जो डिफेंस है वो काफ़ी अच्छे हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, पूरी एफर्ट कर रहे हैं। मेरी टीम फ्रांस है और हम लोग फाइनल में हैं। सारे प्लेयर्स अपना 100% दे रहे हैं। बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, सब कुछ वेल मैनेज्ड है। सारे ही अच्छे प्लेयर्स हैं, हर किसी का डिफरेंट स्टाइल है खेलने का। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कौन सा है, तो मैं रोनाल्डो कहूँगी। उसका मुझे खेलने का स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी फेवरेट टीम का पूछें तो मैं पोर्तुगल कहूँगी, रोनाल्डो की वजह से। मुंतज़मीन का मौक़िफ़ है कि इन मुकाबलों का मकसद ग्रास रूट सतह से खेल को फ़रोग़ देना है। ऑल एज ग्रुप खेल रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। मेरे पास 20+ टीम्स खेल रही हैं इसमें इंटर क्लब की। 3 साल से लेके अंडर 18 तक हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम से बनी हुई हैं। इन सब ने अपनी अपनी पसंद से कंट्रीज़ चूज़ किए हुए हैं, और छोटे जो हैं वो 9 वर्सेस 9 हैं, और सीनियर जितने हैं वो 11 वर्सेस 11 में हम खेल रहे हैं। और आज हमारा फाइनल चल रहा है वर्ल्ड कप का, और एक वर्ल्ड कप उधर स्टार्ट है। बिगनर्स जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले उनका हमने इंटरेस्ट पैदा करना होता है गेम में, क्योंकि जब आपने कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवानी है तो सबसे पहले उनको आपने किसी भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट पैदा करना है। और जब उनका इंटरेस्ट पैदा होता है फिर उनको हम बेसिक ड्रिल्स पे लेकर आते हैं। वार्म अप करवाएंगे, फिर मिनी ड्रिल्स करवाएंगे, हर्डल्स करवाएंगे, जिगजैग ट्रैक्स करवाएंगे, और उनको शॉर्ट पासिंग के बारे में बताएंगे, फुटबॉल को टच कैसे करना है, प्ले कैसे करना है, रनिंग कैसे करनी है। आज के ये बच्चे ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल होंगे। बेहतरीन परफॉर्म करने वाले नन्हे फुटबॉलर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगे इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली का खसूसी इजलास हुआ, जिसमें माली साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया गया। बजट तकरीर का आगाज़ करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने हमारी हुकूमत का तीसरा बजट पेश कर रहा हूँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ये बजट एक ऐसे मौके पर पेश किया जा रहा है जब पाकिस्तान आलमी, अवाम और ज़राए इब्लाग़ की नज़र में एक ऐसे मुल्क की हैसियत हासिल कर चुका है जिसकी आवाज़ सुनी जाती है और जिसकी दोस्ती की ख्वाहिश की जाती है। बजट 2026-27 की तमाम तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2026-27 के लिए 18,771 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट पेश कर दिया। बजट दस्तावेजात के मुताबिक कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि पेंशन की मद में मजमूई तौर पर 1,169 अरब रुपए रखे गए हैं। मिलिट्री पेंशन के लिए 822 अरब रुपए और सिविल पेंशन के लिए 272 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। हम पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट्स जिनमें सफ़ेद स्पिरिट, पेट्रोलियम नाफ्ता और मिनरल टॉपिन ऑयल शामिल हैं, उसे 80 रुपये फ़ी लीटर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। हम दरामद करने वाली जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां दरामद होती हैं, उसमें 2000 सीसी से बड़ी और 3000 सीसी तक की SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पे भी हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। इस टैक्स का इतलाक 2 करोड़ से महंगी लग्जरी EV पर भी होगा। हुकूमत ने साइंस और IT के शोबे में इनकलाब के लिए क्वांटम वैली पाकिस्तान मंसूबे के लिए 1 अरब 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज डेटा सेंटर के क़याम का भी फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला की तरक्की के लिए 56 अरब 7 करोड़ रुपए,
اسلام آباد टेक्नोपोलिस के बुनियादी ढांचे के लिए 56 करोड़ रुपए, जबकि लाहौर में हज कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 31 करोड़ 15 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। माली साल 2025-26 के दौरान मुल्क में गधों की तादाद में मजीद 2 लाख का इजाफा हुआ। इस एक साल के दौरान मुल्क में गधों की मजमूई तादाद 60 लाख से बढ़कर 62 लाख हो गई। हुकूमत के जारी करदा इक्तिसादी सर्वे के एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में खच्चरों की तादाद 2 लाख, जबकि घोड़ों की तादाद गुज़िश्ता साल की तरह 4 लाख बरकरार रही। सर्वे में यह भी बताया गया कि मुल्क में भैंसों की तादाद 4 करोड़ 91 लाख तक पहुँच गई है। बकरियां मुल्क का सबसे बड़ा मवेशी असासा हैं, जिनकी तादाद 9 करोड़ 18 लाख रिकॉर्ड की गई। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में ख़वातीन के खेलों के लिए एक तारीखी पेशरफ्त के तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी वुमेन्स हॉकी चैम्पियनशिप के इनेकाद का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ये बावकार इवेंट जुलाई 2026 के दूसरे हफ्ते में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खेला जाएगा। चैम्पियनशिप में सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और दीगर रीजन्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जो पाकिस्तान भर में लड़कियों की हॉकी में शिरकत को फ़रोग़ देने और इसे वुसअत देने के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुताबिक इस चैम्पियनशिप का बुनियादी मकसद ख़वातीन यंग प्लेयर्स की हौसला अफजाई करना, इन्हें पेशा वराना तरबियत और बेहतरीन माहौल फराहम करना है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मोहिउद्दीन मानी ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद, शहरियों को सहूलियात की फराहमी, रोड सेफ्टी आगाही और ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 1,60,000 से ज़ायद शहरियों के ड्राइविंग लाइसेंस से मुतल्लिक़ अमूर निपटाए गए। इनमें 66,000 से ज़ायद शहरियों को लर्नर परमिट जारी किए गए, जबकि 38,000 से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंसों की तजदीद की गई। इसी अरसे में 50,000 से ज़ायद नए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए, जबकि 3500 से ज़ायद डुप्लिकेट लाइसेंस फराहम किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने 5 लाख से ज़ायद शहरियों को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक़ आगाही फराहम की। रोड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत 2 लाख से ज़ायद अफराद को आगाह किया गया, जबकि मुख्तलिफ मार्केटों में सरगर्मियों के दौरान 54,000 से ज़ायद शहरियों तक पैगाम पहुँचाया गया। दूसरी जानिब खातून अफसर कायनात अजहर खान को चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। मरी एक्सप्रेस वे पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सयाहों की वैन उलट गई और वैन में आग भड़क उठी। अफसोसनाक हादसे में 10 अफराद जाँ बहक हुए। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें और मुतलका हुकाम ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की और ज़ख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद वैन में आग लगी। वैन मोड़ काटते हुए रोड किनारे नाले में जा गिरी। मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरी एक्सप्रेस वे पर अफसोसनाक हादसा। मुसाफिर बरदार हाईएस में अचानक आग भड़क उठने से एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए, जिसके बाद से इलाके की फिजा सोगवार और हर आंख अश्कबार है। काफिले में एक हाईएस वैन और 2 गाड़ियां शामिल थीं, जिनमें एक खानदान के अफराद और करीबी रिश्तेदार सवार थे। आज सिर्फ सूत्रीवाटी नहीं, पूरा मुल्तान सोगवार है। ये बहुत बड़ा दुख है मुल्तान के लोगों के लिए, सूत्रीवट के लोगों के लिए। पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जाँ बहक अफराद की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं, जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में करीबी रिश्तेदारों, सियासी व समाजी शख्सियात, मोटरवे पुलिस के अफसरान, जिले इंतजामिया के नुमाइंदों और सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। इस सानिये को इलाके की तारीख के अलमनाक तरीन वाक़यात में से एक करार दे रहे हैं। सलमान कुरैशी, एक्सप्रेस न्यूज़, मुल्तान। तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल ने GHQ का दौरा किया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। GHQ पहुंचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों पर भी बातचीत की गई। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान तुर्की के मुसल्लह अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी को सराहा और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान
گہرے تاریخی، ثقافتی اور تصویراتی تعلقات ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں بارشوں سے متعلق اگلی خبر۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں، ممکنہ سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائڈنگ کے خدشات کے پیش نظر الرٹ جاری کیا۔ این ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ شمالی علاقوں میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرہ موجود ہے۔ موجودہ موسمی صورتحال ادارے کی جانب سے 3 سے 4 ماہ قبل جاری کیے گئے موسمی جائزے کے عین مطابق ہے۔ ادارہ مسلسل متعلقہ وفاقی، صوبائی اور ضلعی حکام کو ممکنہ خطرات سے پیشگی آگاہ کر رہا ہے تاکہ ہنگامی حالات سے نمٹنے اور بروقت تیاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ موسم کے بدلتے رنگ، قہر ڈھاتی گرمی کے بعد طوفانی ہوائیں اور تیز بارش، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں چھتیں گرنے سمیت مختلف حادثات میں قیمتی جانیں لقمہ اجل بن گئیں۔ ادھر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل کھل کر برسے، جس سے موسم تو خوشگوار ہو گیا مگر حادثات میں قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ چنیوٹ میں بارش کے باعث موٹر سائیکل سلپ ہونے سے میاں بیوی جاں بحق ہو گئے۔ سرگودا میں مکان کی چھت گرنے سے 7 افراد، جڑاں میں دیوار گرنے سے 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرد آلود ہواؤں اور بارش برسانے والا کمزور سسٹم موجود ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے آندھی، بارش اور یالہ باری کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ راولپنڈی، مری، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور دوسرے علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ ادھر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کوسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔